शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I welcome all of you for our Bhakti Shastri course, and we are continuing discussing on the topic Nectar of Instruction, which is now we were discussing second shloka of the Nectar of Instruction, which are items which are detrimental or which destroys our bhakti. So we'll read the shloka because we are meeting after a long time, and then one of you can read the translation. And I request that all of you can switch on your videos because we are going to have exercise today also. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. Yes, one of you can read the translation, Prabhu. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following six activities. First, eating more than necessary or collecting more funds than required. Second, over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Third, talking unnecessarily about mundane subject matters. Fourth, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically. Fifth, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. And sixth, being ready for mundane achievements. Correct. So this is a shloka which we came across, that how when first shloka somebody has to follow Vacho Vegam, Mansa Krodh Vegam, then he has to adopt a lifestyle which is favorable. So Prabhupada in the beginning of this text number 2, he tells that how simple living and plain thinking Prabhupada highlights, because everybody has to work. Nobody can stay, ठीक है भाई, Vacho Vegam, Mansa Krodh Vegam, Jiya Vegam, I will not do anything. I'll sit quiet and just meditate. No, you cannot do like that. Very rare people can do actually. But most of the devotees will be working. They have to take care of themselves. So in that case, Prabhupada mercifully, he gives us a solution in the very beginning, that human life is meant for plain living and high thinking. So if we learn this principle, then following this second shloka is very, very easy. And of course, Prabhupada mentions there are two kinds of souls, demonic and divine, Mahatma and Duratma. Mahatma under the internal potency, Duratma under the external potency. And they understand how to do it. And then we started discussing about Atyahar. It's not just about eating, because if it would have been eating, then it was already covered in Jiva Vegam in text number 1. So therefore our Acharya says, especially Bhaktivinoda Thakur says, that it is not repetition. Atyahar doesn't only stands for eating, it stands for ahar of all the senses. If you remember, correct? This slide. Ahar of all the senses. And then we saw that what why Atyahar is dangerous, because it takes away two valuable things from us. One is time, another is money. It goes. And then, of course, we looked for the solution of Atyahar. What was the solution for Atyahar? So this was a solution which Prabhupada said, that
we have to use everything in Krishna's service. This is a story which Prabhupada mentioned of a rupee note lying and three kind of people coming. And that is how we saw for Atyahar. Now, next thing, there are solutions by Bhaktivinoda Thakur also, which we discussed. About Yukt Vairagya, means using everything in Krishna service, and Atyahar is different for different ashramas. For Grahas ashram, they may require to acquire some things, that is allowed, but not beyond their basic needs, and renounced sins are completely prohibited. Then Atyahar ke baad we discussed about prayas. In prayas also we discussed that why prayas is harmful for us, because it takes us away from bhakti. And then Prabhupada gives an example how people, they work so hard, and then they come back and again take birth in around their house, but then those same people for whom they are working hard, they beat them. And then we discussed about prayasas in different zones. If you remember, we discussed prayas in jnana prayas, karma prayas, bhakti prayas. So bhakti can never be prayas, because bhakti is a natural thing. No matter how much we endeavor, there is no problem. So when we are doing any endeavor for bhakti and sadhana, it's all right. But endeavoring for vairagya, too much renunciation or too much of knowledge, that is not good. And in our practical life, how to apply? So we saw this analogy or kind of working thing of milk and water. So there is something called Sarup Siddh Bhakti, there is something called Arup Siddh Bhakti, and how then we have to be having good amount of Sarup Siddh. Milk should be more, water should be less. If water is more, milk is less, then it no more remains a milk. Similarly, those elements which we are doing and we are calling it to be bhakti, they are Arup Siddh. They should be less than the Sarup Siddh. Sarup Siddh means direct devotional service. And then we saw that how prayas also for householders is different. How they can work in, not go in Ati Prayas zone, by simple bhakti favorable livelihood, constantly remembrance of Hari, balance responsibility with devotion. And for renunciates, also we discussed freedom from accumulation, do not accumulate more, remain humble and sincere practitioner, and accept Krishna's will. So this what we discussed till now in our discussions. All of you remember this? Hari Bol. Hare Krishna. Yes, Yes. Okay. So today we are going to discuss a next element. So we are going slowly. Why? Because we want to discuss in depth all these things, and especially starting 4 shlokas of Nectar of Instruction. They can be actually discussed in great detail. And therefore, Bhaktivinoda Thakur has written a book, Bhakti Aloka, specifically for them. So these shlokas we are seeing in great detail, so that we all can apply things in our life. And other shlokas also we'll see, but there we will quickly go ahead. Okay. So now next element which we are going to discuss, or next thing which is detrimental for our bhakti. Detrimental also I told for practitioner who are newly in bhakti. नए लोग जो आए हैं उनके लिए detrimental है, उनकी भक्ति को डिस्ट्रॉय कर देगा. लेकिन जो भक्त लोग बहुत समय से हैं उनकी भक्ति डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लेकिन क्या हो जाएगी? कवर्ड हो जाएगी. तो अभी हम लोग कौन है, आप डिसाइड करिए कि आप नियोफाइट हैं, नए नए हैं, या बहुत पुराने भक्त हैं. लेकिन दोनों ही केस में नुकसान तो होने वाला है, तो इसलिए हमको पता होना चाहिए. और नेक्स्ट एक जो चीज है जो बहुत कॉमन है वो है प्रजल्पा. लेकिन इंटरेस्टिंगली प्रभुपाद ने एक ही पैराग्राफ लिखा है प्रजल्पा के ऊपर, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कुछ नहीं लिया है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रभुपाद जी का देखेंगे और भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बोलते हैं प्रजल्पा के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो प्रजल्पा, यस, वन ऑफ यू कैन रीड प्रभु. Another impediment is prajalpa, unnecessary talking. When we mix with a few friends, we immediately begin unnecessary talking, sounding just like a coughing throat. If we must talk, we should talk about the Krishna consciousness movement. Those outside of the Krishna consciousness movement are first interested in reading heaps of newspapers, magazines, and novels, solving crossword puzzles, and doing many other nonsensical things. In this fashion, people simply waste their valuable time and energy. Third,
In the Western countries, old men retired from active life play cardboards, fish, watch television, and fourth, debate about useless socio-political themes. All these and other frivolous activities are included in the Prajalpa category. Intelligent persons interested in Krishna consciousness should never take part in such activities. Correct. So Prabhupada, he is very beautifully bringing out this point, you know, that Prajalpa means unnecessary talking. So he is not telling keep monam, he is telling unnecessary talking. And then he is admitting, Prabhupada is telling, when we mix with the friends, we immediately begin unnecessary talking, sounding just like croaking toads. So Prabhupada gives that example. Previously also we saw that how toads are croaking, thinking that I am inviting another she toad and I am impressing her. But in actually they are inviting snake of death closer to them. Prajalpa, it has a positive meaning and a negative meaning. Jalpa, there are talks. So there are various kind of talks which people can do. But those talks which are unnecessary, they are coming in this category of Prajalpa. But Krishna conscious talks, if we must talk, we should talk about Krishna consciousness movement. That is not covered in Prajalpa. Okay. So Prabhupada, he in his time, when he saw the people of this world engaging and wasting their time, so he listed all those factors and what kind of prajalpas people are doing. So he says that interested in reading heaps of newspaper, magazines and novels, solving crossword puzzles. So this was very much prominent during that time. And now if you see, more things are prominent in forms of social media. But here one difference is there that they are reading newspaper together and they are discussing also prajalpas, you know, and discussing with each other about the topic. So that is what is creating problem, wasting the time. Second, doing many other nonsensical things. Nonsensical things means nowadays even people are also talking about, gross and subtle kind of sex life. And on the name of education, they are just putting rubbish inside their brain, on the name of GK, general knowledge, and all those things, which are too much information is not required. That's like we see that nowadays one news, and they do whole analysis of that news, and that creates so much disturbance in the mind of the people. And what happened? They simply waste their valuable time and energy. And Prabhupada is more head. Out of his mercy, he says in the Western countries, old men retire from active life, play cards, fish, watch television. This is also Prajalpa. What kind of Prajalpa it is? So actually, watching television directly is not Prajalpa, but it gives rise to Prajalpa. Playing cards is not Prajalpa, but it gives rise to Prajalpa. And fishing, if you are sitting alone, what to do? Let us do some talk. So Prajalpa. So this is how it results in useless talking and wasting our time. And another very important thing, debate about useless social political schemes. वो बात करते हैं ना लोग कि अरे ये गवर्नमेंट आएगी, ये गवर्नमेंट आएगी, किसकी गवर्नमेंट आएगी, क्या होगा, यहाँ पे क्या चल रहा है, वहां पे, although they are not into anything, but वो सारे व्यू पॉइंट सब कुछ देने लग जाते हैं आपको. So Prabhupada is saying all these and other frivolous activities are included in the Prajalpa category. Frivolous activities where people want to show off that they are very smart and they are very happy. So such kind of activities are also comes into Prajalpa. So many times we see that how devotees also among themselves unnecessary. अच्छा ब्रो कहाँ से लिया आपने कुर्ता? ओ धोती कहाँ से लिया आपने? अच्छा मोबाइल कौन सा है आपके पास? Frivolous talks, है ना? And sometimes we joke about each other, leg pulling, है ना? We pull each other's leg. All these things come into Prajalpa. हमको लगता है कि हम इंटेलिजेंट बन रहे हैं, हम स्मार्ट बन रहे हैं लोगों के सामने,
दूसरे को लेग पुल करके, बट एक्चुअली में हम किस में रिजल्ट कर रहे हैं? प्रजल्पा में रिजल्ट कर रहे हैं। और प्रभुपाद बोले इंटेलिजेंट पर्सन इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियस शुड नेवर टेक पार्ट इन सच एक्टिविटीज. So now let us see what Bhaktivinoda Thakur has to say about Prajalpa. So Bhaktivinoda Thakur gives a definition of Prajalpa. He says first, Prajalpa means idle, useless or worldly talk. These three things. So idle means watching television and all these things come into picture, or watching social media also comes into picture. So watching social media may not be directly Prajalpa, but it gives rise to Prajalpa. Because when you will take input, surely you have to share this input with somebody. So what input you are taking, you will definitely share it with everybody. इसलिए आजकल हर एक सोशल मीडिया उसमें क्या होता है, शेयरिंग का ऑप्शन रहता है. देखा आपने, कोई भी व्हाट्सएप में पोस्ट आता है, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट, सब में शेयर, क्योंकि वो प्रजल्पा है ना. हमको शेयर करने का मन करता है, कट करके उसको दबा देते हो, आइडियल में आ जाता है. आइडियल मतलब कुछ नहीं बैठे, जैसे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी क्या करें. तो अगर वो भी ऐसा भी कंडीशन है तो भी हमारे क्या है, प्रजल्पा है वो. फिर दूसरा यूजलेस. यूजलेस तो मैंने आपको बताया, प्रभुपाद जी बता रहे सोशल पॉलिटिकल मैटर्स वगैरह में. वर्ल्डली टॉक्स है ना, उसका फॉल डाउन हो गया, इसका फॉल अप हो गया, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, अरे आपको पता है यहाँ पे ऐसा सीन हो गया, यहाँ पे वैसा, ये सारी चीजें प्रजल्पा में आती है. नेक्स्ट थिंग इज इट डिस्ट्रैक्ट्स द माइंड फ्रॉम कृष्णा एंड वीकेंस भक्ति. दिस इज हाउ प्रजल्पा अफेक्ट्स अस. प्रजल्पा के बारे में बोला जाता है इट्स अ स्लो पॉइजन. स्लो पॉइजन क्यों है? क्योंकि when we are doing प्रजल्पा we don't feel that it is harming my भक्ति. जब हम प्रजल्पा करते हैं तो हमको लगता नहीं कि मेरी भक्ति का क्या नुकसान हो रहा है. अच्छी तो चीज है प्रभु जी, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वो डिवोटी का फॉल डाउन हो गया, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कैसे फॉल डाउन हुआ प्रभु जी, अच्छा है ना. या फिर अरे प्रभु जी मैं उस डिवोटी से बात कर रहा था, उसका ब्लास्फेमी कर रहा था कि कैसे वो प्रीचिंग गलत कर रहा है, जिससे मैं सीख सकूं कि मैं अच्छे से प्रीचिंग कैसे कर सकूं. तो ये स्टार्टिंग में तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्लो पॉइजन है. स्लोली स्लोली हमारी भक्ति को क्या करता रहता है, वीकेन करता रहता है, कमजोर करता रहता है. And Bhaktivinoda Thakur says only Krishna Katha talks related to Lord is beneficial. तो अब आपका क्वेश्चन आएगा, प्रभु जी ओनली कृष्ण कथा कैसे कर सकते हैं? हमको कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो वर्ल्डली टॉक्स करनी पड़ेगी. तो यस, कुछ तो वर्ल्डली टॉक्स करनी पड़ेगी, और वो कुछ तो वर्ल्डली टॉक्स जब आप करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो चीजें हैं वो आएंगी. तो उसके लिए भी हम लोग डिस्कशन करने वाले कि कैसी चीजें अलाउड है, क्या क्या चीजें अलाउड है. बिकॉज समटाइम्स सम वर्ल्डली टॉक्स आर गुड, बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट सोल्यूशन की प्रजल्पा के लिए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट टॉक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे भागवतम में वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी मेटेरियलिस्टिक लोगों के डिस्क्रिप्शन देते हैं. सेकंड कैंटो में अगर आप पढ़ेंगे, फर्स्ट ही चैप्टर में शुरू हो जाते हैं, है ना, कि वो लोग कैसे बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, दिन रात, बस दिन का समय पैसे कमाने के लिए, रात का समय सेक्स लाइफ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ये सब कौन बता रहा है? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं. अभी जो वर्ल्डली टॉक हो गई ना, ब्लास्फेमी टॉक हो गई, लेकिन ये भी भागवतम के अंदर इंक्लूडेड है. क्यों? बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस टॉक इज टू ब्रिंग आउट डिटैचमेंट. तो ऐसे करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक कृष्णा कॉन्शियस टॉक रख सकते हैं. एंड इवन दो दे माइट नॉट बी डायरेक्ट कृष्ण कथा, बट in what terms we can talk like this. ठीक है. So before we go ahead, we'll do quick exercise. Bhaktivinoda Thakur says there are different types of prajalpas which one should give up. So in short, he gives list of 6: useless talks, argument, fault finding, false speech, worldly talk, and blasphemy. So now I'm going to divide all of you into 6 groups, और आप लोगों को प्रेजेंट करना है. ये मैं आपको बता भी दूंगा, आप लोग लिख भी सकते हैं. ये 6 टॉपिक्स आपको बता देंगे कौन कौन सा, इसमें आपको क्या प्रेजेंट करना है ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ. सो बेसिकली यू हैव टू प्रेजेंट कि यूजलेस टॉक क्या है. तो मैं आपको बता दूँ छोटा छोटा शॉर्ट में, सो दैट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. यूजलेस टॉक मीन्स जो टाइम वेस्ट वाली चीजें हैं ना, न्यूज़पेपर वगैरह, इधर उधर की चीजें, ये सब यूजलेस. आर्ग्यूमेंट मतलब
लॉजिकली बार बार एक ही चीज को पूछते रहना शास्त्रों से या फिर किससे, प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है? सही में कार्तिक का महीना इतना इंपॉर्टेंट है प्रभु जी, तो फिर हम पुरुषोत्तम मास क्यों बनाते हैं? मतलब यूजलेस ना। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, एब्सर्ड इंक्वायरी बोलते हैं प्रभुपाद जी। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब अगर उस इंक्वायरी का आंसर भी मिल गया तो कुछ करने वाले नहीं हैं आप। लाइक कुछ डिवोटीज बोलते हैं कि प्रभु जी वो उनके बेटे थे तो फिर वो परीक्षित महाराज ने ये राज्य कैसे संभाला प्रभु जी, कहाँ थे? तो ये सब क्या यूजलेस टॉक्स है, बहुत सारे आर्गुमेंट। वो क्यों आता है? आउट ऑफ प्राइड एंड एनवी आता है। नेक्स्ट है फॉल्ट फाइंडिंग। सो आप सब लोगों को पता है, फेमस चीज है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। फॉल्स स्पीच यानी झूठा बोलना, या बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बोलना, या फिर धोखा देते हुए बोलना, ये सब आता है फॉल्स स्पीच में। वर्ल्डली टॉक्स, वर्ल्डली टॉक्स बेसिकली तीन चीजों के ऊपर होती है। पहला मनी, दूसरा फेम, तीसरा सेंस प्लेजर, सेक्स लाइफ, सेंस प्लेजर। तो इसकी एंड लास्ट इज ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी और फॉल्ट फाइंडिंग में डिफरेंस क्या है? फॉल्ट फाइंडिंग मतलब क्या है? आई एम फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स टू प्रूव माई सेल्फ टू बी ग्रेटर। मैं उसके अंदर फॉल्ट क्यों कर रहा हूँ? भाई अभी दो डिवोटीज हैं, दोनों ने अच्छा गाया, प्रभु जी उसने बहुत अच्छा गाया, लेकिन लास्ट में जो वो बोल दिया ना, वो गलत था। मैंने वो लास्ट वाला भी अच्छा से गाया, मैंने प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रॉपर गाया, उसने वो प्रभुपाद प्रभुपाद गलत कर दिया उसने। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग हो। लेकिन ब्लास्फेमी मतलब हम, मेरे को उससे एकदम दुश्मनी हो गई है, साधु निंदा, वो जो भी कुछ कर रहा है गलत कर रहा है, वो कुछ सही कर ही नहीं सकता है। अरे प्रभु आपको कैसे दिख रहा है, वो हाथी दांत दिखाने के और खाने के और है। वो ये ब्लास्फेमी में आ जाता है। सो नाउ व्हाट विल डू इज ऑल ऑफ यू, यू नीड टू प्रेजेंट कि क्या क्या वैष्णव के बीच में ये टॉक्स हैं, यूजलेस टॉक्स। आपको एक एक ग्रुप में जो आपका टॉपिक होगा, वो टॉपिक का आपको एक एग्जांपल्स देने कुछ कुछ, कि मान लीजिए यूजलेस टॉक, तो डिवोटिस कैसे यूजलेस टॉक करते हैं और उससे हमारी भक्ति कैसे डिस्ट्रॉय होती है, ये आपको बताना है, और उसको ओवरकम करने का क्या तरीका है। ठीक है, ऑल यू अंडरस्टूड? ठीक है। So we are going to create 6 breakout rooms and then we go ahead. Please join your breakout rooms, Prabhuji. सब लोग ज्वाइन कर लीजिए प्रभु अपने ब्रेकआउट रूम्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ब्रो। हाँ गुरु जी, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा। टाइप्स बताए थे 6 टाइप ऑफ जलपास। हाँ। तो व्हाट आर देयर एग्जांपल एंड हाउ दे अफेक्ट आवर भक्ति? अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हमको छह के छह का निकालना है या फिर किसी एक का? छः छः का। अच्छा ओके ठीक है। तो कंचन वो आप लिखिए, हम लोग ऐड करेंगे उसमें। हाँ यस ब्रो, बोलिए मैं लिख रहा हूँ। है कुछ है, लिस्ट डाउन कर लिए ना ब्रो? यूजलेस टॉक। हाँ नाम तो लिख लिया सबका, लिस्ट है मेरे पास, जमा कर लिया है। गुरु जी ने क्या बताया था यूजलेस टॉक में? यूजलेस स्टॉक में ऐसे मतलब क्या चल रहा है, आपको धोती कहाँ से खरीदी, ये सब। तो इसमें तो यही होता है कि जब इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है इन चीज़ों में, और ये टाइम को कंज्यूम करती है मोस्टली। हम्म। टाइम ही जाता है सबसे ज़्यादा तो इसमें।
ये होता है कि और लाइक धीरे धीरे इंटरेस्ट भी बढ़ता है फिर इन चीज़ों में, नई नई चीज़ों के बारे में जानने का। और एक चीज है कि ये मोस्टली हम लोग अपना वर्डली अटैचमेंट से होते हैं, उन्हीं की चीजों को हम भक्ति को लेकर वो कर लाइक अगर हमको बहुत ज्यादा शॉपिंग करने का शौक है तो कोई डिवोटी कुछ भी खरीद के लाएगा तो हमको बोला "अरे, कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा", तो हम अपनी उसी टेंडेंसीज को और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। हाँ, यस, करेक्ट। तो जी यू आर का फॉल्स स्पीच टॉपिक है, फॉल्स स्पीच, ठीक है। अच्छा, फॉल्स। ओके। फुल स्पीच। फोर्थ टॉपिक, एक जना मीडिएटर बता सकता है लास्ट में, ठीक है। हरे कृष्ण। फुल स्पीच का क्या डेफिनेशन दिए थे प्रो जी? मुझे बता दें, स्पीकिंग लाई और बोस्टिंग, आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना या झूठ बोलना, ये दो चीजें आती हैं इसमें। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि झूठ बोलते हैं तो फिर बेसिकली इट इंक्रीजेस मोर चांस टू स्पीक लाई। मतलब एक झूठ बोलते हैं तो फिर बार बार में झूठ बोलना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए, एंड देन इट हम्म। पुट्स अस इनटू ए ट्रैप। और और एक चीज ये मुझे लगता है कि हम अपनी क्या बोलते हैं अपनी आप लिख फर्स्ट रहे ईगो हैं ना को ब्रो, मेंटेन। कंचन ब्रो? हरे कृष्णा। हाँ, आप लिख भी लेना साथ साथ में, ताकि हाँ समझ प्रोजेक्ट। में आया। तो सेकंड पॉइंट मुझे समझ आ रहा है कि हम अपने फर्स्ट ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम झूठ बोलते हैं। लाइफ में कोई गलती कर दी तो कुछ पाने के लिए कुछ झूठ बोल दिया, या हमको कोई सेवा दी गई, हमें टाइम पे किया नहीं लेकिन बोलते मुझे कर लिया है, हाँ तो बाद जाके करते हैं। करेक्ट। आप बताइए ब्रो। हाँ, सो फॉल्स स्पीच से क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेशन लूज होता है। हम फॉल्स स्पीच करते हैं तो एट द टाइम हमारा डिटर्मिनेशन लूज हो जाता है। ये भक्ति के लिए हानिकारक होता है। और डुप्लिसिटी मेंटालिटी आ जाती है, डुप्लिसिटर। और एक और वर्ड होता है, वो हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी डुप्लिसिटी आती है फॉल्स स्पीच से। तो ये भक्ति के लिए बहुत खराब होती है। करेक्ट। हम्म। और एक जो इम्प्रूवमेंट का मूड होता है वो खत्म हो जाता है, हम इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं, हम हर सिचुएशन को जस्टिफाई करने लगते हैं। हाँ ये। व्हाट ये गिव एग्जाम्पल हाउ टू ओवरकम इट। ओके। हम्म। तो एक तो गुरुजी ने बोला था कि इसका एग्जाम्पल क्या है और इसका इफेक्ट क्या होता है भक्ति पे, है ना? तो और हाउ इफेक्ट, टू हाउ टू ओवरकम इट। हाउ टू ओवरकम इट। अच्छा, तभी हमने इफेक्ट बताया, अभी एग्जाम्पल बताना बाकी है और हाउ टू ओवरकम इट बाकी है। तो हाउ टू ओवरकम इट, हाँ नहीं, मतलब सिम एग्जाम्पल भी और लिखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल कहाँ लिखे हैं आपने ज्यादा? बस है क्या? एग्जाम्पल है लिखे हैं। हमने तो कैसे अफेक्ट करता है ये, हाँ ये डिटर्मिनेशन को लूज लिखा करता है है। ये। एग्जाम्पल जैसे कंचनपुर ने बताया ना कि सेवा किया नहीं है फिर बोलते हाँ नहीं कर दिया, फिर जी बाद में जाकर करते हैं, ये है। या फिर बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, या अपना अपना मसाला लगा के बोलते हैं ना, कुछ भी कुछ ऐसा रहता है उसमें अपना ऐड ऑन करके बोल देते हैं। या फिर जैसे फॉल्स स्पीच में मेंटल स्पेकुलेशन भी आता है, अगर हम कुछ देखा है सुना है उसमें भी कुछ बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं ना, क्लास का भी अपना ऐड ऑन कर देते हैं उसमें पॉइंट। वो अच्छा नहीं रहता, वो अथॉरिटी को वो हो जाता है, डिफाई करते हैं अथॉरिटी को। यस। लेक्चर में कुछ सुना उसको अपना ऐड ऑन करके बता दिया, ये। और ये आ सकता है कि मतलब अपनी भक्ति के बारे में ज्यादा ही मतलब बताना कि मुझे तो एक्सटेसी फील हो रही है, या फिर इस तरीके से कुछ हैवी नहीं, हम्म। उसको अच्छे से फॉल्सली बोस्ट करना कि मेरे तो और एयर था। फॉल्स स्पीच में एक और चीज आता है कि डिवोटी को वो
बहुत बड़ा चढ़ ग्लोरीफाई भी करना, जो चीज नहीं है, मतलब क्या अनऑथराइज ग्लोरिफिकेशन क्या बोलते हैं आउट उसको। ऑफ आउट हाँ आउट ऑफ एनवी हाँ। होता है ये। आउट ऑफ एनवी भी बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, अरे प्रभु आप तो कितना अच्छा कर रहे हो, ये वो आउट ऑफ एनवी ग्लोरीफाई करते हैं। और एक ये उसको वर्ड क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे। हिंदी में तो शायद चापलूसी बोलते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ। नॉन मतलब जेन्यून अप्रिसिएशन नहीं होता है, जेन्यून अप्रिसिएशन नहीं होता है। अप्रिसिएशन आउट ऑफ एनवी या अप्रिसिएशन आउट ऑफ मतलब कंपैरिजन करते हैं तो करते हैं, ये फॉल्स स्पीच में आता है। और एक चीज किससे ह्यूमिलिटी, मतलब वो नहीं होता, हम कभी हम्बल नहीं हो पाते, हम हमेशा हम्म लाइक हम अपने उसको ही सुनेंगे, जो हमारा जो माइंड बोलता है ना, हम माइंड के जाल में फंस जाते हैं, हम कुछ बताया हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम्म। और हाउ टू ओवरकम में क्या करें, हमारे पास टाइम कम है, हाउ मैंने टू 3 मिनट टाइम लगा दिया है। हाउ टू ओवरकम में पहला पॉइंट आता है सिंप्लिसिटी। अगर कोई सिंपल है तो उसके लिए बहुत इजी होता है, सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, सिंप्लिसिटी प्रैक्टिस करना। एंड अनदर थिंग इज हम्म, रिवील टू सम सुपीरियर अबाउट योर कंडीशन। हाँ। हाँ, रिवीलिंग टू सबके सुपीरियर। सामने हो सकता है ना बता पाए, कुछ हाँ। प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज है, हम्म, झूठ बोल रहे हैं, एटलीस्ट कोई ये कॉन्फिडेंस। वनडिवटी होना चाहिए। हाँ, वो रिवील हम्म। करिए ताकि एटलीस्ट उनको पता हो, तो फिर सही रहता है। और और वी कैन रीड शास्त्रा द इफेक्ट ऑफ लाइंग। उनको पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा कि झूठ बोलना कितना हानिकारक है, तो फिर उससे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा नहीं झूठ बोलने का। हाँ, कैसे को लूज कर लेते हैं। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच होता है, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड होता है, इसको हाँ। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजों से बच सकते हैं। सिंप्लिसिटी हो गया, रिवेलिंग टू सुपीरियर हो गया, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड हो गया, रीडिंग स्क्रिप्चर्स दैट टेल्स द पावर ऑफ स्पीच। और एंड इफेक्ट में एक और चीज लिख सकते हैं, प्रूव इट ब्रेक्स आवर रिलेशनशिप्स, मतलब हाँ, आवर रिलेशन इट इफेक्ट्स रिलेशनशिप। विद डिवोटीज और अदर। हाँ। और एक ये भी है कि अगर कोई अच्छे से साधना कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, तो वो इस सब चीज से बच सकता हाँ, यस। है ये। गुड साधना। क्योंकि अगर साधना अच्छा नहीं तो भी ये सब चीजें आती हैं, एनवी, कंपैरिजन, ये सब। साधना स्ट्रांग रहेगा, जेन्युइन होगा तो अच्छा है। लास्ट ठीक है। कुछ 15 सेकेंड में। और क्या कर सकते हैं हम, नोट डाउन कर सकते हैं हमारे माइंड में क्या क्या आ रहा है, जब नोट डाउन करेंगे तो हमको पता चलेगा हमारा माइंड क्या क्या कह रहा है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं ये गलत है, ऐसा। ये इस तरीके से बच सकते हैं। अरे बोल। Hare Krishna. So yes, we have group number 1, useless talks. So who is group number 1? Yes, Prabhu, Vishwas, Prabhu, please. Guruji, Pranjal Prabhu will explain. Yes, please tell. You can tell हरे कृष्ण। cause of useless talks and how it destroys bhakti and how to overcome solution. ठीक है? These यस three सर। एकदम briefly. Yes, Prabhu, रोज please. रोज यूजलेस स्टॉक्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम लोग जो धोती कुर्ता परचेज करते हैं तो कहाँ से परचेज करा, किस क्वालिटी का है, ये सब। और एक्सपेंसिव गैजेट्स, उसके फीचर्स, सोर्सेज, कहाँ से परचेज करा। Okay. और जैसे और जो मतलब एक 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 जो डिवोटी वो दूसरे वॉइस में रहता है, एक डिवोटी दूसरे वॉइस में रहता है, तो प्रसादम के बाद में डिस्कशन होता है कि मेरे यहाँ प्रसादम अच्छा मिलता है और आपके यहाँ वैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या उसके बात, बाद यूजलेस टॉक में बोल दिया, डिवोटीज आपको मारेंगे क्लास के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे। उसके बाद जैसे यात्रा पे गए तो जैसे कोई कोई डिवोटी दूसरे ग्रुप के साथ यात्रा में गया है, कोई डिवोटी दूसरे ग्रुप के साथ यात्रा में गया है, तो बाद में जब मिलते हैं तो डिस्कस करते हैं कि मतलब आप उस प्लेस पे गए कि नहीं गए, मैं तो गया था, ऐसा। और इसके अलावा यूजलेस टॉक्स जो इस्कॉन के अलावा और जो संप्रदाय हैं उनके बारे में बात करना आपस में। अच्छा, अब तो ये बत्ती कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? यस,
पहला तो इससे कुछ लर्निंग नहीं होती हम लोग को, और दूसरा ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसकी जगह हम लोग उसको भक्ति में यूज कर सकते थे। और इसके अलावा अगर अदर संप्रदाय के बारे में टॉक करोगे तो आपको डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे, जो आप भक्ति कर रहे हो आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और उसके अलावा आपने जो ये डिस्कशन करा फीचर्स के बारे में और धोती कुर्ता इन सब के बारे में, तो इससे क्या होगा, जिसने मतलब उसको फोमो क्रिएट हो जाएगा और उसको उसकी एनवी बढ़ जाएगी दूसरे डिवोटीज के प्रति, और मटेरियल डिजायर्स इंक्रीज हो जाएंगी कि उसको मिल गया तो मैं भी एफर्ट लगा के और मतलब और ज्यादा कर्म करके उसको पाने की कोशिश करेगा वो। ग्रेट, अति प्रयास हो जाएगा उसका, अमेजिंग। हथियार भी के लिए जाएगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन प्रभु जी यही कि जब आपस में बात करें तो थोड़ा कॉन्शियस होकर बात करें, कि अगर किसी को लग रहा है कि ये जो बात है वो गलत दिशा में जा रही है तो दूसरे को बोल देना चाहिए, कि या मतलब रुक जाना चाहिए, उसमें सोचना चाहिए, बोलना चाहिए उसको। ये नहीं कि बात करते तो करे जा रहे, क्योंकि बीच में आता है ऐसा मोमेंट कि लगता है कि हाँ हम लोग गलत बात कर रहे हैं, तो उस समय बोल देना चाहिए। और उसके बाद आप मतलब सीनियर डिवोटीज का एसोसिएशन ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, और उनसे गाइडेंस भी लेना चाहिए। कि आप जैसे बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने यूजलेस टॉक करी और आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो इसके बारे में आप अपने सीनियर से पूछोगे तो वो कहेगा कि आप उस पर्सन से थोड़ा आप डिस्टेंस बना के चलो, जो आपको बहुत हैबिचुअल है प्रजल्पा करने में, तो जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो। और इसके अलावा जो वो गीगो प्रिंसिपल होता है, गुड इन गुड आउट, तो आप रेगुलरली रीडिंग हियरिंग कर सकते हैं उसको, यही सोल्यूशन है। ग्रेट, थैंक यू, वेरी नाइसली डन। ये आप प्रेजेंट कर लीजिए ग्रुप में। लेट अस गिव रिएक्शंस टू दिस ग्रुप। कैसे देते हैं यार रिएक्शन? अच्छे खासे वाले सब दे दो। रॉकेट, रॉकेट कहाँ है? अरे रॉकेट बढ़ा दिया मैंने, देखो। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, तो ऐसा सब आप रिएक्शन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ग्रुप, यस। सेकंड ग्रुप, हु इज सेकंड ग्रुप? व्हाट योर टॉपिक? सेकंड ग्रुप कौन है? यस, अमन यादव ब्रू, Yes, गो अहेड। Proji, our topic was argument. आर्ग्यूमेंट, हाँ बताइए क्या Yeah. है आर्ग्यूमेंट? कैसे भक्ति तो डिस्प्ले करता है और कैसे ओवरकम? यस प्रोजी, तो प्रोजी आर्ग्यूमेंट में होता क्या है कि हम लोग अपने आप को, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए उसको किसी भी मीन से प्रूव करना चाहते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये हमारे भक्ति के लिए कैसे डेट्रीमेंटल होता है। तो हम लोग जब किसी सामने वाले को मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं तो सामने वाले को नीचे दिखाते हैं, तो हम लोग प्राउड हो जाते हैं। तो हम लोग शिक्षाष्टकम में देखते हैं प्रोजी की वर्ष है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा है। बट अभी हमारे हार्ट में प्रोजी प्राउड आ गया तो होगा क्या कि हम लोग भगवान का नाम कॉन्टिन्यूसली नहीं ले पाएंगे। और एक और रहता है प्रोजी की हम लोग अपने पॉइंट को दूसरे को फोर्स कर रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए। तो एक कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी है, लाइक हिरण्यकशिपु जो है अपना अपने बात को वो प्रहलाद महाराज के ऊपर इम्पोज कर रहा था कि हाँ तुम एक्सेप्ट करो मेरा ऐसा। 2 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करना है, हाँ? यस प्रोजी, आप लास्ट। 1.5 मिनट हो चुका है, अब यस आपको प्रोजी, आना पड़ेगा। हम्म। यस प्रोजी। और फिर लास्ट हमारा जो हार्ट है प्रोजी, वो हार्ड हार्टेड हो जाता है, बहुत ड्राई हो जाता है, तो वहां पे भक्ति महारानी जो है वो स्टे नहीं करना चाहती वो। सोल्यूशन, तो ये प्रोजी सोल्यूशन। सोल्यूशन प्रोजी है कि यस सोल्यूशन प्रोजी हियरिंग अबाउट आवर गोल, व्हाट इज माय गोल, आई एम हियर टू केम हियर टू प्रैक्टिस भक्ति एंड गो बैक टू गॉड हेड। इज देयर एनी बेनिफिट फॉर माय like for doing the argument, is it is beneficial for my bhakti or not। और प्रोजी दूसरा एक सोल्यूशन की हम लोगों को हमारे सीनियर वैष्णव से संग लेना चाहिए। वो क्या है कि हम लोग जब भी मतलब आर्गुमेंट करना चालू करेंगे तुरंत वो कैच कर लेंगे वो ये ऑफ ट्रैक पे जा रहा है। तो ग्रेट, ये प्रोजी सोल्यूशन जो थैंक यू वेरी मच। सो लेट अस थैंक दिस ग्रुप आल्सो बाय सेंड hearts and beads and everything, है ना? एंड थैंक यू वेरी मच। आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए ये जो तीनों चीजें। यस, थर्ड ग्रुप कौन है जल्दी से? Hare Krishna Prabhu. Am I audible? यस, बट यू आर नॉट विजिबल, Yes, मिस्टर am I इनविजिबल। visible? Yes, हाँ, Prabhu.
रोजी तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ या जस्ट ऐसे ही पॉइंट शेयर कर दूँ? जैसा आपका मन करे। ओके ब्रोजी, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन ब्रोजी। 2 मिनट में करना है सब कुछ लेकिन। यस ब्रोजी, श्योर ब्रोजी, इज इट विजिबल? हाँ। Okay, Proshi. So these are the things which we have discussed. Our group composed of Mahasangeetan Prabhu and Sandeep Prabhu and myself. So basically, what is fault finding? तो first thing is example. Exactly क्या है? तो सबसे पहला example प्रोशी हमने डिस्कस किया था that we are judging others. Judging on what basis? Example कोई डिवोटी है चैंटिंग के टाइम पे थोड़ा डोजिंग कर रहा है, स्लीपिंग वो सब कर रहा है, बट एग्जैक्टली उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको किसी सर्विस के कारण लेट नाइट हो गया हो, दैट इज अ थिंग। अनदर रीजन इज कि हम ऐसे उनके आउटफिट को देख के या मतलब उनके एक्सटर्नल बिहेवियर को देख के हम चीजों उनको जज करते हैं। जैसे देखो बाल कैसे कर रहे हैं या शर्ट्स बहुत ही वैसे पहन रहे हैं, ऑपुलेंट कपड़े वो सारी चीजें पहन रहे हैं, तो वो जजिंग मेंटेलिटी हो गया। दूसरा थिंग पर्टिकुलर कुछ टाइम पे कुछ डिवोटीज क्या अपने हेल्थ के कारण या कुछ कंडीशन के कारण कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह वो वैसे करके या अदर थिंग्स ऑल्सो। तो फिर क्या हम जज करने लग जाते हैं उनको कि ऑस्टेरिटी नहीं कर रहे हैं, एकादशी पे फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, एकादशी पे लाइक 3 टाइम्स या वट एवर द थिंग इज। एंड द थिंग इज अगर कोई डिवोटी कुछ सर्विस आ गया है और सर्विस के कारण क्या उसको अपना कुछ कॉमन चीज है उसको थोड़ा छोड़ना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिवाइस प्रिपेयर उसको करना है तो हो सकता है कि वो अपने क्लास जो कॉमन जो वॉइस में जो मॉर्निंग क्लास होता है उसको वो पर्टिकुलर कुछ टाइम अलॉट करके वो अपना उसमें चला गया। या अगर कोई कुकिंग में उसको जाना है तो फिर वो अपना वो साधना उस टाइम पे नहीं कर पाएगा, तो हम उसको जज करने लग जाएं कि ये देखो ये कभी साधना ही नहीं करता है, पूरा टाइम अपना वही सब सेवा करता रहता है। तो दिस इज द थिंग प्रोची। और एक थिंग प्रोची और कि हम बस उन्हीं लोगों से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, उन्हीं डिवोटी से जो कि क्या इंटरेस्टिंग क्लासेस देते हैं, जोक्स वगैरह वो सब करते हैं। और बाकी जो लोग उतना इंटरेस्टिंग वे में मतलब लग सकता है कि क्लास नहीं देते उनसे हम नहीं करते। तो ये भी ये एक फॉल्ट फाइंडिंग की कैटेगरी में। इसलिए आज की क्लास यस में वैसे, ग्रुप आया है ना, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डालना। यस वैसे। अब इस सेकंड थिंग इस प्रोजेक्ट वो कैसे डिस्ट्रॉय करता है तो हमने डिस्कस किया था। ये एक्चुअली ना इसके कारण ये हमारा सेकंड नेचर बन जाता है सारी चीजों में क्या फॉल्ट फाइंडिंग कर लेना। भले ही सारी चीजें अच्छी हैं पर हमको फोकस करना चाहिए एक्चुअली अच्छी चीजों पे, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे। पर हम ये हमारा नेचर बन जाएगा और दैट इज डेट्रीमेंटल बिकॉज ये वैष्णव अपराध धीरे धीरे हमको उससे करीब ले जाएगा। थर्ड इज हाउ टू ओवरकम दिस। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था दैट फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर ओन साधना। क्या मैं चैंटिंग में नहीं सो रहा हूँ, क्या मेरा कुछ मतलब प्रायर कुछ पर्टिकुलर चीजें नहीं आ रहा है ऐसा करके। फिर अपने पर्सनल थॉट उनके ऊपर ध्यान देना है। तीसरा एग्जाम्पल एक सारस वाला एग्जाम्पल आता है ब्रोची क्रेन का कि वो क्या वाटर से भी वो मिल्क को सेपरेट कर सकता है। तो हमको वैसा बनना है, मतलब नेगेटिव चीजों में भी हमको पॉजिटिव को देखना है। और जस्ट एक पॉइंट आई वाज हियरिंग बाय सुनील रत्न सिंह महाराज, ही सेज that if we know the intention behind anything then we have a reason to love that person। तो बेसिकली कुछ भी हमको ऐसा लग रहा है तो विदाउट जजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी व्हाट इज द इंटेंशन। तो दिस आर थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। थैंक यू सो मच। अमेजिंग, सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। तो प्रभु जी इनके लिए भी हम लोग एक बार तालियां, हाथ पैर जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, यस, कहाँ है, कौन है फोर्थ ग्रुप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस। Vijay अरे Adarsh आप, Prabhu, Mohit Prabhu और myself, we came to this some points on false speech। इसमें दो चीजें होती हैं कि झूठ बोलना और किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो एग्जांपल्स हैं कि हमको कोई अथॉरिटी ने सेवा दी और हम सेवा किए नहीं, फिर हमसे जब पूछा जाता पूरी सेवा हो गई, बोलते हैं हाँ पूरी हो गया, फिर बाद में जाकर करते हैं उसको जल्दी से कर लेते हैं ताकि दिखाने के लिए। या तो कि अगर हम अभी जो कुछ हमारे लाइक नए नए ड्यूटीज आ रहे हैं, न्यू कमर ड्यूटीज हैं, उनके सामने हम बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं कि हम अपने टाइम पर 2-2 घंटा ड्यूटी क्या करते थे, हम मॉर्निंग में ही चैंटिंग कंप्लीट कर लेते थे। क्या बात है, आपने तो दुखती नर्व्स पे हाथ रख दिया है। ठीक है, ये आपको डिवोटिस बात में पकड़ेंगे, ठीक है। तो जी लाइक हम लोग लेक्चर सुनते हैं तो उसको अपने मेंटल कॉन्शियसनेस को और बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट करते हैं, किसी फैक्ट्स को या फिर किसी चीज को जो हमको अच्छा लगता है हम उसको और ज्यादा एक्सपेंड वो करके बोलते हैं। एंड समटाइम्स आउट ऑफ एनवी वी ग्लोरीफाई डिवोटीज कि अगर हमको कोई सेवा मिली क्यों आप कुकिंग कर दो, अरे प्रभु आप तो एक्सपर्ट हो, मुझसे एक्सपर्ट हो, आप करो मैं नहीं करूंगा। तो ये सब फॉल्स स्पीच में आता है। एंड हाउ डिस्ट्रॉय भक्ति। तो प्रभु जी वी हैव टू स्पीक मोर एंड मोर लाई टू कवर वन लाई। तो हम इस लूप में फंस जाते हैं
एंड हमारा फॉल्स ईगो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हम हर चीज को जस्टिफाई करने लगते हैं। हमारा जो इम्प्रूवमेंट करने का मूड है वो लूज जाता है। हम इम्प्रूव नहीं करते, हम हर चीज को जस्टिफाई करना चाहते हैं। और हमारा भक्ति करने का डिटर्मिनेशन भी लूज होता है कि हम सुपीरियर्स को दिखाएंगे कि मैं बहुत अच्छा ड्यूटी हूँ, और अब हम कोई भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। और इससे हमारे अंदर डुप्लिसिटी और हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। हमारी आदत पड़ जाती है हर जगह झूठ बोल देने का। कुछ भी होगा हम तुरंत उसको झूठ बोल देंगे, और इसकी वजह से हमारा ड्यूटी के साथ रिलेशनशिप बहुत इफेक्ट होता है। ड्यूटी से मालूम चलेगा तो हमको हमारा ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, हमको अथॉरिटी से हमारा ट्रस्ट लूज हो जाएगा। एंड हाउ टू इम्प्रूव? तो पहला है प्रैक्टिस सिंप्लिसिटी, सरलता ही वैष्णवता है। एंड एंड वी शुड हैव सम ड्यूटी, एटलीस्ट वन ड्यूटी इन आवर लाइफ। उनके सामने हम सब कुछ बोल सकते हैं, हम पूरा अपना हार्ट रिवील कर सकते हैं कि मेरी ये दिक्कतें हैं, सब कुछ हम बोल सकते हैं। एंड थर्ड, वी शुड रीड शास्त्रास वेयर वी फाइंड द इफेक्ट ऑफ लाइंग और बोस्टिंग। अपने आप को बड़ा चढ़ा के बोलने से बहुत ही डिफिकल्टी आती है। लाइक हम एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं अर्जुन का, कि वो ब्राह्मणास के बेटे जब उनकी डेथ हो रही होती है तो अर्जुन बोलते हैं मैं देखता हूँ, मतलब कि मेरे रहते हुए अभी और किसी डेथ नहीं होगी। तो अपने आप को बहुत ही ऐसा मतलब दिखाते हैं। हालांकि वो भगवान पास में रहता है, बट इफेक्ट जो होता है वो कि जो ब्राह्मणास उनसे और ज्यादा लाइक नाराज हो जाते हैं। एंड हाँ। एंड और फोर्थ इज वी शुड रीड द वर्सेस ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, एंड वी शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग साधना। हम साधना स्ट्रांग रहेगा तो हमारा माइंड चीट नहीं करेगा। और हमारे माइंड में जो कुछ भी आ रहा है, मतलब अपने को बढ़ा चढ़ा के या फिर कोई भी बहुत ज्यादा मेंटल क्वेश्चन रहा है, हम उसको एक जगह नोट डाउन कर लेंगे तो हमको साफ साफ दिखेगा ये तो ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। अमेजिंग थैंक यू अमेजिंग। प्रिय। मैंने सोचा आप ये भी बोलोगे हमको एनओआई पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने शास्त्र हाँ पढ़ जी। लिया। थैंक यू, लेट अस थैंक दिस ग्रुप आल्सो फॉर नाइसली ब्रिंगिंग। देखो, लगता है कि ये खाली फॉल्स टॉक्स है, लेकिन फॉल्स टॉक्स का कितना फॉल्स इंप्रेशन है हमारे ऊपर, है ना। थैंक यू। यस, फिफ्थ ग्रुप, फास्ट फास्ट, वी हैव वेरी लेस टाइम। फिफ्थ ग्रुप कौन है? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज हाँ, आ रही है प्रभु जी? बिल्कुल प्र, आवाज आ रही है। प्रभु जी, हमें हमें दिए गया था वर्ल्डली टॉक्स। तो इसमें हमें तीन चीजें पे डिस्कस करना था: मनी, फेम और सेंस प्लेजर। तो ये मनी के बारे में प्रभु जी हमने थोड़ा डिस्कस किया, हम और विष्णु जन प्रभु जी के साथ। तो उसमें बता रहे थे कि कैसे जैसे मनी के लिए आता है तो मनी के लिए हम ज्यादा प्रयास करते हैं, ओटी करते हैं। और बता रहे थे कि अभी क्लास में बता रहे थे पिछले के या पिछले क्लास में कि हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा और कर लें तो और पैसा आ जाएगा, और ऐसे करके। और फिर एक ऐसा जैसे ज्वाइनिंग डिवोटी होते तो उनको लगता है अरे एक दो साल ही तो मेहनत करना है, जम के अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा भक्ति इफेक्ट होता है तो क्या बाद में उसको ज्वाइन कर लेंगे या कर लेंगे। तो ऐसा आता है माइंड में। और लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, हमारे भक्ति में इफेक्ट कैसे होता है? ईगो आता है, जैसे पैसे आता है, लक्ष्मी आता है, और अटैचमेंट आता है। ऐसे करके कि मेरे पास पैसा है, ये हो जाएगा तो क्या होगा। फियर आता है पैसे खो जाने का। टाइम वेस्ट होता है, इसको हम ज्यादा जब पैसा इकट्ठा करने में जाते हैं तो हम भक्ति में उसमें ज्यादा वो नहीं कर पाते। और हैंकरिंग बढ़ता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और ओवर इंडेवर बता रहे थे, इसमें और ज्यादा हम प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे उसमें मनी का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। और भागवतम में एक श्लोक भी आता है, उसमें बताते हैं पूरा कि कैसे कितने नुकसान होते हैं मनी से, ऐसे करके। तो वो भागवतम का श्लोक नहीं हम ढूंढ पाए प्रभु जी, लेकिन वो याद था ऐसा करके। सोल्यूशन। ओवरकम के, हाँ, सोल्यूशन बता रहे थे कि कृष्ण के ऊपर हमें फेथ होना चाहिए कि वास्तव में जो मेंटेनर हैं वो कृष्ण ही है। हमारे मेंटेन करने से या फिर हम फैमिली को उतना टेक केयर नहीं कर सकते। और दूसरा जो जितने सारे इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस या पॉलिसी हैं, पैसा जमा करते हैं, वास्तव में जो इंश्योरेंस है वो कृष्ण ही इंश्योर करेंगे कि मतलब आप टेक केयर होंगे कि नहीं, ऐसा करके। दूसरा था प्रोजेक्ट फेम के बारे में हमें चर्चा करना था। बस तो फेम जब 30 सेकंड में पूरा करना है अभी, जल्दी से, फास्ट फास्ट। हाँ, हाँ। फेम के लिए बता रहे थे प्रजी कि हमारे अंदर जो ह्यूमिलिटी वो चला जाता है, और हम दूसरों को कम सुनते हैं और अपना ज्यादा सुनाने का प्रयास करते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग आता है जब फेम आ जाता है। ब्लेस फेम करते हैं हम दूसरे को, आर्गुमेंटल हमारे अंदर जजमेंट आ जाता है। और इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सोल्यूशन क्या है? हमें अंडर गाइडेंस में हमेशा कुछ भी सेवा हो अंडर गाइडेंस में करना चाहिए, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए, और प्योर डिवोटी का एसोसिएशन करना चाहिए, वाणी के द्वारा और वैसे वपू के द्वारा। लास्ट था सेंस प्लेजर। तो उसमें बता रहे थे ओवर ईटिंग हो गया, टाइम वेस्ट होता है जब हम सेंस प्लेजर के लिए पीछे भागते हैं।
तो हम बहुत ज्यादा खाने के लिए सोचते हैं ऐसा करके। सोल्यूशन में इसलिए बता रहे थे, डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहिए, प्रीचिंग करना चाहिए जिससे हमारे सेंस प्लेजर कम होगा थोड़ा, और प्रॉब्लम के बारे में हमें नॉलेज रहना चाहिए कि जैसे मैं खाया था अभी, तो इतना इतना प्रॉब्लम्स होना चाहिए, तो वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। थैंक यू। ये तो So let us thank this group also for presenting so nicely. आप भी WhatsApp ग्रुप में डालिएगा प्लीज, है ना? अरे यस थैंक यू। आप लोग सब लोग रिएक्ट वेक्ट कुछ करिए। हाँ, यस, लास्ट ग्रुप कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ है। हाँ, यस, बताइए। प्रभु जी, like we in the sixth group we were like Sandeep, we have discussed this thing like regarding blasphemy. So blasphemy, Prabhu ji, this develop when we like when we have envy for some devotees, or second aspect ki like when someone is doing better than us in any field. So then this blasphemy come on the surface. So Prabhu ji, इसमें हम basically क्या करते हैं, like miss although that particular devotee has good qualities, but still we we not become sargrahi, we become like makhi. So we always stick whatever, although he doesn't have any bad quality, but still we focus on their whatever little bit bad quality is having. Like in example, it comes Daksha, although Lord Shiva has not bad qualities, his Vaishnava name Yatha Sambhu, still Daksha he is finding fault in Lord Shiva. And another example, Ramchandpuri, like he is finding fault in Lord Chaitanya Mahaprabhu. So he is blaspheming Lord Chaitanya Mahaprabhu. So this happens basically when we are not good in some field and someone is other in some other devotee he is better in that aspect. So this blasphemy come on the surface. So pretty like how to destroy bhakti. So because how it destroy bhakti. So in this pretty blasphemy, like because Lord loves his devotee very much. So if someone blasphemes his devotee, so Lord not at all like this. So he will come out of association. Because if he blasphemes someone, then what will happen? Our relationship will become very big. Then we'll come out of association. Then another thing, Priti, ki, like if we blaspheme, then holy name will not get taste in chanting. Because if we are doing this, then taste also will lose, and we can't cooperate with other devotee also. So and this will come in Hatimata Afrad also, because we are offending a Vaishnava. So ultimately we'll go out of devotee association. And if we don't see good quality in others, if we blaspheme others, then what will happen? Then we'll develop less taste in spiritual life, and we'll develop more, we'll incline more toward material life. This will happen. So basically it will fully destroy, it will take us away from devotee association. Then what are the solution? Then solution means we have to be Sargrahi Vaishnava, because in Kali Yuga means it's ocean of fault. So miss everyone have miss people, they have good quality also, but because our nature is like miss, because why we are blaspheming, because Jesus Christ says ki either we are having this bad quality or in future we will develop this bad quality. So miss like we have to see good quality in others. We should try to develop this attitude, and although miss little bit fault is there, so this movement, this Lord Chaitanya Mahaprabhu movement is very merciful movement. We all are having some fault, so it's just matter of time. Whatever little bit fault anyone having, anyone bad quality having, it all will remove away. It will all will wash off. So and third thing is we have to see, we have to try to hear more about like what is the bad effect of blasphemy, what is the dangerous effect of the blasphemy, that we should time to time hear. So with hearing, like we'll get more impression ki how if I blaspheme any devotee, then I will go out of association. So it is very dangerous for my bhakti. थैंक यू। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है। मेरे ख्याल से मेरे को क्लास देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। All of you are so intelligent and gave very nice solutions. In fact, your solutions were matching completely with Srila Bhaktivinoda Thakur solutions also. So without taking, so this is what Srila Bhaktivinoda Thakur says about useless talks, time wasting, worldly conversation, newspaper, novels, and how it destroys our bhakti. It destroys our focus in the bhakti. So he gives one specific thing. What things are destroyed by what? तो हम इससे जज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मेरा जीवन में क्या नहीं आ रहा है। फोकस नहीं आ रहा है मतलब मैं यूजलेस टॉक कर रहा हूँ।
argument, logic for winning out of pride and envy. It makes our heart hard, diverts from the truth. So if I am becoming too much, hard-hearted, that means I am doing arguments a lot. Third thing is fault finding. That means criticizing others to elevate oneself. अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों के अंदर अवगुण फाइंड आउट करना. इससे हमारी भक्ति में क्या होगा? ऑफेंसेस बढ़ जाएंगे डिवोटीज के प्रति, और हमारा फॉल डाउन हो जाएगा. तो ये तो हमको करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफेंसेस तो बहुत डेंजरस है. ऐसा बताते हैं नाम प्रभु का जो फर्स्ट अपराध है वो है टू ब्लास्फेम द डिवोटीज, है ना. तो उसमें क्यों ये अपराध है? क्योंकि जो डिवोटीज हैं वो प्रोपेंडर्स हैं, प्रोपोगेटर्स हैं होली नेम के. तो अगर उनके प्रति उनको कोई हार्म पहुंचाता है तो होली नेम का प्रोपोगेशन रुक जाता है. तो इसलिए होली नेम प्रभु दुखी हो जाते हैं और इसलिए वो अपराध हो जाता है. नेक्स्ट इज फॉल्स स्पीच. बहुत अच्छा उन्होंने बताया. लाइज, एक्सेजरेशन, डिसीट, एक झूठ बोलना है, बार बार झूठ बोलना है. उससे हमारा हृदय क्या हो जाएगा? पल्यूट हो जाएगा. किस चीज से पल्यूट हो जाएगा? तो जैसे आप लोगों ने बताया बहुत अच्छा कि और झूठ बोलेंगे, डिसीटफुल रहेंगे, चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, है ना, डुप्लिसिटस बिहेवियर दिखाएगा, वो सब हो जाएगा. वर्ल्डली टॉक. तो वर्ल्डली टॉक में था डिस्कशन ऑन मनी, कैसे पैसा कमाया जाए. प्रयास तो प्रयास में आ गया, लेकिन यहाँ पर है डिस्कशन, कैसे मैं फेमस हूं, कैसे मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, कैसे मैं बेटर इंद्र तृप्ति की चीजें लूं. इससे हमारी माया के प्रति अटैचमेंट बढ़ जाता है. तो अगर कोई न्यूज बहुत ज्यादा सुन रहा है ना, या फिर मूवीज देख रहा है, या फिर वर्ल्डली कौन सी चीज रिलीज हुई, अच्छा आईफोन 17 रिलीज हुआ, या फिर ये गाड़ी कौन सी है, वॉच कौन सी, ये सब कुछ अगर कोई ज्यादा उसके बारे में डिस्कशन भी कर रहा है तो माया के प्रति उसका अटैचमेंट बढ़ जाएगा. एंड फाइनली ब्लास्फेमी, यानी साधु निंदा, जो बहुत अच्छा बताया सबसे ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल है. तो अब इसका सॉल्यूशंस क्या है? आप लोगों ने तो दिए. लेट्स सी भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं. सिंपल सॉल्यूशन बोलते हैं. अगर कोई गॉसिप, आर्गुमेंट और फॉल्ट फाइंडिंग कर रहा है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? हरि कथा एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटीज में उसको लगना चाहिए. दिस इज अ काउंटर आर्गुमेंट. अगर कोई फॉल्स स्पीच, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स ये सब पढ़ रहा है तो उसको किसमें? शास्त्र की स्टडीज में और डिवोशनल चीजों को शेयरिंग में लगना चाहिए. फॉल्ट फाइंडिंग, आर्गुमेंट और गॉसिप में ग्लोरीफाई करना चाहिए डिवोटीज को, है ना. वर्ल्डली टॉक और पॉलिटिकल टॉक में तो वर्ल्डली टॉक और पॉलिटिकल टॉक उसको कौन सी सुननी चाहिए? जो शास्त्रों में हमारी दी है महाजन्स की, और बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस हमको दिए हैं वो सब उसको सुनना चाहिए, शास्त्रों के सुनना चाहिए. और अगर कोई ब्लास्फेमी की डिसीज लग गई है किसी को, इट्स वेरी डेंजरस, तो उसको प्रे करना चाहिए, नाम प्रभु का आश्रय लेके कीर्तन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए. देन ओनली ही कैन ओवरकम ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. सो आई वांटेड टू आस्क, कैन आई गो 7 minutes over time or shall we discuss? I just have 3 more slides. Adarsh Prabhu. Yes, Pradeep. ठीक है. So this is how the solution is. Now what all things are not in Prajalpa? ये भी बता दे भक्ति विनोद ठाकुर. He says that if somebody is doing kirtan and prayer, glorifying the Lord, that doesn't come in Prajalpa. If somebody is doing Shastra discussions and instructive talks based on Bhagavad Gita, just like I told you, and Sukhdev Goswami is talking about materialistic people, but the goal is to develop detachment. So ऐसा गोल के डिटैचमेंट वाली टॉक्स का वो प्रजल्पा में नहीं आएगा. Similarly, there we see Maitreya Muni. He talks about so many subject matters of Puranjana story and Dhruv Maharaj story and this Vena story. But all these stories are having an instructive purpose. So for instructive purpose, if some talks are given, that is not in Prajalpa. So this is what is. Next is discussions for instructions. When we are talking with some guides, gurus, they instruct us, giving some specific example. That also doesn't come in Prajalpa. Just like, for example, if somebody comes to you and some junior comes to you and you tell him, oh, Prabhu, actually, you should not be working in this company because this is how your bhakti will spoil.
and then you give. I have seen one devotee who was working in this same way, and this is how his fall down happened. So this is not prajalpa, because you are instructing somebody, है ना? Therefore you are allowed to find fault so that you can instruct them. ऐसे वाले fault finding में नहीं आते हैं. तो इसलिए आप सुनते हैं कभी राधे श्याम प्रभु कोई पर्टिकुलर डिवोटी का एग्जांपल देके हमको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो सब फॉल्ट फाइंडिंग में नहीं आता है. लेकिन अगर आपको क्लास नहीं देनी है, फिर भी आप ऐसे ही बैठ के एक दूसरे के अंदर फॉल्ट निकाल रहे हैं, वो फॉल्ट फाइंडिंग में आता है ना. हिस्टोरिकल नरेटिव्स, प्रहलाद महाराज पुरंजन की स्टोरीज, हालांकि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ना. उसमें हो सकता है कि हम लोग बहुत सारे वर्ल्डली टॉक्स भी करें, पॉलिटिकल टॉक्स करें, लेकिन दैट डजंट कम इन Prajalo, because you are narrating the history, from the Shastras. That is not. So similarly, if somebody is interested in hearing about great kings, Parikshit Maharaj, Yudhishthir Maharaj, even for that matter Shivaji Maharaj, है ना, और राजा मान सिंह जिन्होंने गोविंद देव टेम्पल बनाया, जय सिंह, इन सब के बारे में भी अगर टॉक करना है, तो that also doesn't come in Prajalpa, because that is not worldly talk. ऑल्दो लग सकता है वर्ल्डली टॉक जैसा नहीं. जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में ऑपुलेंस बता रहे रघुनाथ दास गोस्वामी के, है ना, उनकी इतनी सुंदर वाइफ थी, उनके पास इतने पैसे थे, वो वर्ल्डली टॉक में नहीं आएगा. वर्ल्डली टॉक में क्या आ जाएगा? अगर हम अभी बता रहे हैं अरे बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, अंबानी के पास ऐसा है, उसका ये घर है, ये सब वर्ल्डली टॉक्स में आ जाएगा. कंस्ट्रक्टिव टॉक अबाउट अदर्स, है ना. तो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स अबाउट अदर्स, अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में ब्लास्फेम नहीं कर रहे, बट वी आर ट्राइंग टू लर्न from his behavior, that is also allowed. Talks on Mahajana's path, remembering and following their example. All these kind of talks are not faulty and they are allowed. So these are kind of talks are given in the scriptures also, so that we can grow in our bhakti. Now finally, for a householders, as I told you, ये जो सारी instructions है householder के लिए अलग apply होती है और renowned states के लिए अलग होती है. हाउस होल्डर्स के लिए बोला गया है मे स्पीक अबाउट अदर्स ओनली एज नीडेड इन सर्विस और फैमिली ड्यूटी. तो फैमिली ड्यूटी को पूरा करने के लिए, अपने आश्रम को इंटैक्ट रखने के लिए, उसको कभी कभार हो सकता है कुछ वर्ल्डली टॉक करनी पड़े, जानना पड़े भाई क्या प्राइस चल रहा है, अगर मेरे को एसी खरीदना है कौन सा एसी सस्ता मिल रहा है, या मेरे को गाड़ी खरीदनी है मंदिर जाने के लिए तो कौन सी गाड़ी. तो ये सब वर्ल्डली टॉक्स में नहीं आएगा, या सेंस प्लेजर की टॉक्स में नहीं आएगा, बिकॉज ही हैज टू डू दोस थिंग्स, है ना, उसकी ड्यूटी है. वैसे शुड सेंटर हाउसहोल्ड टॉक्स अराउंड कृष्णा. कोशिश करना चाहिए कि जो घर की सारी टॉक्स हो वो कृष्णा के सेंटर्ड हो, है ना, कैसे कृष्णा कॉन्शियस फैमिली जी सकती है.